الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد تقریب سعید جمعۃ المبارک آج کے اس پرنور ماحول کے اندر میری گفتگو کا عنوان جو رکھا گیا وہ ہے شہداء کے مراتب اور اس کے فضائل۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ میری زبان سے کلمۃ الحق جاری فرمائے اور سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ آج ذو الحج کی 25 تاریخ ہے، یعنی اسلامی سال کا آخری جمعہ ہے، اور اسلام کے اندر یہ مہینہ ایک رنگین باب رکھتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ اسلامی سال کا اختتام بھی شہیدوں کے واقعات سے بھرا ہے اور اسلامی سال کی ابتدا بھی شہداء کے باب سے بھری ہوئی ہے، یعنی یوں سمجھ لیے کہ ابتدا بھی قربانیوں سے ہے اور انتہا بھی قربانیوں سے ہے۔ اسی مناسبت سے آج جو موضوع رکھا گیا شہداء کے مراتب و فضائل، تو اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا جاتا ہے کہ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہیں مل جائے جنہیں دولت شہادت کی، شہادت پا کے ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے، یہ رنگین شام و صبح عید کی تمہید ہوتی ہے۔ دنیا کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے مراتب رکھے اور اسلام کے اندر بھی مراتب ہے اور اسلامی لحاظ سے بھی مراتب ہے۔ اس کے متعلق چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے لحاظ سے، کاروباری لحاظ سے، دنیا کے عہدوں کے لحاظ سے، دنیا کے مراتب کے لحاظ سے کوئی چوکیدار کے مرتبے پہ ہے، کوئی انسپیکٹر کے مرتبے پہ ہے، کوئی ڈی ایس پی کے مرتبے پہ ہے، کوئی ڈی پی او کے مرتبے پہ ہے، کوئی وزیر کے مرتبے پہ ہے، کوئی مشیر کے مرتبے پہ ہے، کوئی صدر کے مرتبے پہ ہے، کوئی وزیر اعظم کے مرتبے پہ ہے، یعنی کوئی چیف آرمی اسٹاف کے مرتبے پہ ہے، کوئی اپنے گاؤں، اپنے ایریے، اپنے محلے، اپنی سوسائٹی اور اپنے ٹاؤن، اپنی کمیٹی، کسی نہ کسی لحاظ سے کوئی نہ کوئی بندہ کسی نہ کسی مرتبے پر ہے۔ لیکن اسلامی لحاظ سے دو ہی مرتبے، ایک یا تو وہ مسلمان ہے یا تو وہ کافر ہے۔ تو کفار کے اندر بھی کئی کیٹیگریاں آ جاتی ہیں، ان میں سے مرتد بھی ہیں جو واجب القتل ہوتے ہیں، کئی کافر اور قسم کے ہوتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو اہل کتاب ہیں، مسلمانوں کے ذمہ ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر بھی بے شمار مراتب ہیں۔ مثلا صالحین کا بھی ایک مرتبہ ہے، اور شہداء کا بھی مرتبہ ہے، صدیقین کا بھی مرتبہ ہے، اور سب سے اعلیٰ درجے کا جو مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص اور برگزیدہ بندوں کو عطا کرتا ہے، وہ مرتبہ اگر ہے تو وہ انبیاء کا مرتبہ ہے۔ اور اس کائنات کے اندر سب سے عظیم مرتبہ اگر کسی
को अल्लाह ताला ने अता फरमाया वो मेरे और आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता फरमाया। अब इस मरातब के भी आगे बेशुमार मरतबे, यानी मुसलमानों के मसलन के गौस का भी एक मरतबा है, कुतुब का भी मरतबा है, अब्दाल का भी मरतबा है, औताद का भी मरतबा है, ये बेशुमार मरातब हैं। मुफस्सर का भी एक मरतबा है, कारी का भी एक मरतबा होता है, इमाम का भी एक मरतबा है, ख़तीब का एक मरतबा है, मदरस का एक मरतबा है, बेशुमार मरातब हैं। लेकिन आज चूँकि शुहदा के ऊपर बात करनी है तो हम शुहदा के मरतबे की बात करेंगे। बात असल ये है कि शहीद की भी 3 अक़साम है, और एक किस्म है जिसको शहीद हकीकी कहा जाता है, दूसरी किस्म जिसको शहीद फ़िक़ही कहा जाता है, और तीसरी किस्म है जिसको शहीद हिकमी कहा जाता है। अब इन तीनों में से जो सबसे आला और ऊंचे दर्जे की किस्म है वो है शहीद हकीकी, जिसका मतलब ये है, जिससे मुराद ये है, जिसका माना ये है, जिसका मफ़हूम ये है कि इंसान बंदा मोमिन सिर्फ़ और सिर्फ खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए कुफ़ार के मुकाबले में अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए, ऐसे को शहीद हकीकी कहा जाता है। और दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो उलमा ने इसकी भी वजाहत फरमाई है कि आकल बालग मुसलमान जिस पर गुस्ल फ़र्ज ना हो और वो तलवार, नेज़े, बंदूक किसी ऐसे आला से उसको जुल्मन कत्ल किया गया हो तो उसको शहीद फ़िक़ी कहा जाता है। और शहीद हिकमी क्या है, यानी कि उससे मुराद ये है कि जो जुल्मन ना कत्ल किया गया हो, मगर क़यामत के दिन इसको भी अल्लाह ताला शहीदों का दर्जा अता फरमाएगा। इसकी भी आगे मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 किस्में बयान फरमाई हैं। नंबर 1, पहला वो बंदा जो ताउन की बीमारी की वजह से फ़ौत हो जाए उसको भी शहीद का दर्जा मिलेगा, यानी शहादत मिलेगी। और नंबर 2, जो डूब कर पानी में मर जाए, यानी कि खुदकशी ना करे, किसी सबब की वजह से बग़ैर अरादतन खुद को वो बचाना ही चाहे लेकिन उसको मौत वाक़या हो जाए, उसको भी अल्लाह शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। नमूनिया की वजह से फ़ौत हो जाए उसको भी अल्लाह शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। और पेट की बीमारी की वजह से कोई किसी को डेथ हो जाती है तो अल्लाह ताला उसको भी शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। और आग में झुलस जाए, आग में जल जाए, अल्लाह ताला उसको भी शहादत का दर्जा अता फरमाएंगे। और किसी के ऊपर मकान, बिल्डिंग, कोई दीवार गिरी, यानी दीवार के नीचे दब के वो फ़ौत हो गया, उसको भी अल्लाह ताला शहादत का दर्जा अता फरमाएंगे। और जो औरत बच्चे की पैदाइश के वक़्त जिसकी डेथ हो गई, यानी डिलीवरी के वक़्त वो फ़ौत हो गई, तो अल्लाह ताला उसको भी शहादत का दर्जा अता फरमाएंगे। तो ये मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शहादत की शहीद हिकमी की 7 किस्में बयान फरमाई हैं। इसके अलावा भी उलमा ने बेशुमार इसकी वजाहत फरमाई है। मसलन नबी अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरे बिगड़ी उम्मत के वक़्त जो मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा करेगा अल्लाह ताला उसको 100 शहीद का सवाब अता फरमाएगा। तो इस तरह के बेशुमार कौल हमारे सामने आते हैं। तो ये शहादत की अक़साम हैं कि किस किस कैटेगरी की शहादत होती है, लेकिन सबसे आला और सबसे अरफा और सबसे बेहतरीन और अल्लाह के यहाँ जो सबसे ज़्यादा मुकाम पाती शहादत वो है जो अल्लाह की राह में कुफ़ार के साथ मुकाबला करते हुए बंदा ज़ख्मों की ताब बर्दाश्त करते हुए खून जिस्म से नुचर रहा हो, फिर भी अल्लाह के ऊपर उसका ईमान मजबूत हो तो उसकी डेथ हो जाए तो उस बंदे को अल्लाह ताला शहीद हकीकी का दर्जा अता फरमा देते हैं। अब आ जाइए शहीद के फ़ज़ाइल क्या है। शहीद के फ़ज़ाइल के ऊपर बात करें तो सबसे पहले अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उनको मुर्दा ना कहो, वो तो जिंदा हैं, तुम्हें ही शऊर नहीं। एक तो आयत ये हो गई। और दूसरी आयत के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना
कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़कून। अल्लाह फरमाती है जो लोग मेरी राह में कत्ल हो जाए उनको मुर्दा ना कहो, क्या करो, बल अहया, वो तो जिंदा हैं, इंदा रब्बिहिम युरज़कून, वो तो रिज़्क़ खाते हैं, अल्लाह के यहाँ से रिज़्क़ खाते हैं। अब दो आयतें मैंने आपके सामने रखी हैं फ़ज़ाइल के लिहाज से। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमा दिया। अब इसके ऊपर गौर कीजिए, चाहे इसको फ़लसफ़ा समझिए, चाहे इसके ऊपर तज्ज़िया समझिए, चाहे इसकी तशरीह तफसीर समझिए, या इसकी तहकीक समझिए, या कोई और इसका लेबल लगा लीजिए कि इसका मतलब क्या है, इसका मफ़हूम क्या है, इसका माना क्या है। ज़रा गौर कीजिए, खालिक़े कायनात ने फरमाया जो मेरी राह में फोत हो जाए उसे मुर्दा ना कहो। यानी कि अल्लाह ताला कहना चाह रहे हैं कि जो बंदा मेरी राह में फोत हो जाता है उसके मतलब और बातें तो बहुत दूर की बात है, तुम उसको मुर्दा भी नहीं कह सकते कि वो मरा हुआ। ज़ाहिरी तौर पर तो वो नजर ही नहीं आता। कहीं आपने किताबों के अंदर पढ़ा है कि बड़े बड़े शहीद हो गए, मैदान करबला के अंदर देखिए किस तरह वो 72 अफराद शहीद हुए, हज़रत उमर फ़ारूक शहीद हुए, उस्मान गनी शहीद हुए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए, तो हज़रत अब्बास के बाजू कटे गए। तो बज़ाहिर तो यूँ लगता है कि बंदे की डेथ हो गई, लेकिन उसके अज़ाब बिखर गए, वो किस तरह मिल पाएंगे। लेकिन सोचने की बात है, अल्लाह ताला ये पसंद नहीं करते। बंदे तू ये समझ ले कि मेरी राह में जो बंदा फोत हो जाता है उसको मुर्दा नहीं कहना, क्योंकि तू अगर मुर्दा कहेगा अल्लाह को पसंद नहीं है, तू मुर्दा कहेगा कुरान की मुखालफत होगी। अल्लाह चाहते हैं कि वो बंदा जो मेरी राह में फोत हो गया वो तो मुर्दा नहीं है, वो तो शहीद हो गया है, वो तो अल्लाह की राह में कत्ल हुआ है, उसे मुर्दा नहीं कहना। क्यों? क्योंकि वो गवाह बन गया, उसने अपने रब के यहाँ अजर पा लिया, उसने अपना ठिकाना जन्नत में देख लिया, उसने अल्लाह की जलवे देख लिए, और रूह निकलने से पहले पहले जिसके लिए उसने जान दी है। तो मुझे बताओ, दुनियादार को किसी के लिए जान दे उसे बहुत कुछ देता है, तो जो कि अल्लाह के लिए अपनी जान दे दे अल्लाह फिर उसे क्या कुछ दे। अल्लाह ने फिर कितना करम फरमाया है बंदे के ऊपर। अल्लाह फरमाता है उसे मुर्दा ना कहो। अब आगे फरमाया कि बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, वो तो जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं। अब यहाँ पे भी एक बात गौर कीजिए, शऊर और होता है, इल्म और होता है। इल्म की तारीफ कुछ और है, शऊर की तारीफ कुछ और है। इल्म से मुराद ये है किसी चीज़ की हकीकत को जानना, लेकिन इल्म हर किसी को अल्लाह नहीं अता करता। इल्म अल्लाह ने इंसानों को अता किया, शऊर अल्लाह ने हिवानों को भी अता किया। इसकी मिसाल यूँ समझिए, गुज़िश्ता कुछ अरसा पहले ये कुर्बानी के अयाम गुजरे हैं, यानी ईद उल अज़हा का दिन गुजरा है। उस वक़्त काफ़ी लोगों ने वो जानवर ख़रीदे और उनको ज़िबा किया अल्लाह की राह में। अक्सर लोगों को देखा है वो आगे जा रहे हैं, पीछे वो उनका जो लेला है वो भी जा रहा है, वो बकरा भी जा रहा है, वो गाय साथ जा रही होती है। या किसी मुकाम पर देखे किसी जानवर को कि वो जानवर क्या करता है, जब कोई मालिक अपने डेरे पे जाता है चारा डालने के लिए, पानी पियाने के लिए, वो जानवर देख के अपनी दुम भी हिलाता है और दाएं बाएं भी होता है, और ये सिग्नल देता है कि बताता है कि मेरा मालिक आ गया, मुझे कुछ देने लगा है। अब ये शऊर है, मुहक्किकीन कहते हैं ये शऊर है उस जानवर के अंदर। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो मेरी राह में कत्ल हो जाए उसे मुर्दा ना कहना, क्योंकि तुम्हें तो शऊर ही नहीं। यानी कि जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला कि उस बंदे को जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ, शहीद को मुर्दा कहेगा तो वो तो जानवरों से भी बदतर है, वो तो हिवानों से भी बदतर है, वो तो कीड़ों मकोड़ों से भी बदतर है वो बंदा जिसने कहा। क्यों? वो बंदा वो है जिसकी निस्बत अल्लाह के साथ ख़ास हो गई। अब देखना होगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अपने दौर मुबारक के अंदर कि जब तुम ऊँट को कुर्बानी के जानवर के लिए, यानी कि जानवर ज़िबा करने के लिए अल्लाह की राह में तुम ये नियत कर लेते हो, वक्फ कर लेते हो कि ये जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाएगा, तो तुम उसके गले में एक हार डाल दो ताकि उसको उसकी सवारी कोई ना करे, उसको अपने कारोबार में कोई ना लेके आए, किसी वो रेलगाड़ी के आगे ना
कोई इसको जो ले, ये इस तरह का मामला ना हो, सबको पता चलना चाहिए। यार सुने इसकी वजह क्या है, तो हुक्म यही मिलेगा कि इसकी निस्बत अल्लाह के साथ हो गई है। एक जानवर की निस्बत अल्लाह के साथ हो गई तो हजूर अलैहि सलाम पसंद नहीं फरमाते उसकी सवारी की जाए, हजूर अलैहि सलाम पसंद नहीं फरमाते उसकी खेती बाड़ी की जाए। हजूर अलैहि सलाम कहते हैं कि उसके नाज फिर उठाए जाएं और उसकी खिदमत की जाए, उसको मोहब्बत की निगाह से देखा जाए। तो जो जानवर अल्लाह की राह में दिया जा रहा है तो उसका ये मुकाम है। तो जो इंसान खुद अपनी जान को भी माल को भी वक्फ करता है, अल्लाह की राह में कुफार के मुकाबले में चलता है और अपनी जान दे देता है, अल्लाह फरमाता है वो जिंदा है, वो मुर्दा नहीं है। अब ये शुहदा के फ़ज़ाइल के लिहाज से जब ये नबी अलैहिस्सलाम ने ये आयत मुबारक पढ़ी तो हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी वजाहत क्या है, इसका माना क्या है, इसका मफहूम क्या है। तो मेरे आका मिशकात शरीफ के अंदर है ये हदीस मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शहीदों की रूह सब्ज़ परिंदों के जिस्म में है और इनके रहने के लिए अर्श इलाही के नीचे कंदीलें लटकाई गई हैं। जन्नत में वो जहाँ चाहते हैं जैसे चाहते हैं वो सैर भी करते रहते हैं और जिस तरह चाहते हैं वो खाते पीते रहते हैं। ये महबूब अलैहिस्सलाम ने ये बाकायदा वजाहत फरमाई। और हजूर अलैहिस्सलाम ने शुहदा की अज़मत बयान करते हुए हजूर अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया है कि जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाता है अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। जो अल्लाह की राह में शहीद होता है अल्लाह तबारक व तआला उसको अज़ाब कब्र से महफूज कर देते हैं। और जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाता है वो उसकी रूह निकलने से पहले पहले वो अपना ठिकाना जन्नत में देख लेता है। जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाता है अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको पुरवकार ताज पहनाएगा। जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाता है अल्लाह ताला उसका जन्नत में 72 हूरों से निकाह फरमाएगा। जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाता है कल क़यामत के दिन वो लोग जो जहन्नमी होंगे अल्लाह तबारक व तआला शुहदा को वो इख्तियार देगा, तुम अपने मर्जी के मुताबिक 70 अफराद को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर लो, यानी वो शहीद की शफाअत कबूल की जाएगी। ये मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके फ़ज़ाइल बयान फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला ने भी ये फ़ज़ाइल बयान फरमाए। तो ये अल्लाह तबारक व के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुकाम पर तो ये फरमाया कि जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं उसकी भी 3 किस्में हैं। एक किस्म ये है कि जो खालिसतन अपना माल भी और अपनी जान भी सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए देते हैं, उसको तो अल्लाह ताला अर्शे इलाही के खैमा में अल्लाह जगह अता फरमाता है। और दूसरे नंबर पर वो है जो गुनाहगार तो होता है लेकिन शहीद हो जाता है, अल्लाह उसे भी माफ़ फरमा देते हैं। लेकिन एक वो है जो शहीद भी होगा अल्लाह माफ़ी नहीं देगा। वो कौन है? हज़ूर अलैहि सलाम फरमाते हैं मुनाफिक बंदा है जो अंदर से काफिर हो लेकिन बाहर से मुसलमान हो, यानी नफाक। हज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया तलवार जो है नफाक यानी छुपे हुए कुफर को तलवार नहीं मिटा सकती इंसान के जिस्म की। ये नफाक कितना बुरा है तो हज़ूर अलैहि सलाम ने यहाँ पे भी 3 चीज़ें वाज़िया फरमा दी। अब आगे हम चलें तो शहीद के जो ज़ख्म होते हैं इसका एहसास ही नहीं होता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुतल्लिक़ भी बड़ी वजाहत अरशाद फरमाई। हज़ूर अलैहि सलाम की बारगाह में पूछा गया, या रसूलल्लाह क्या शहीद को तकलीफ़ होती है? तो महबूब अलैहि सलाम ने फरमाया, जिस तरह एक चींटी काटती है ना तो तकलीफ़ होती है, इससे भी कम शहीद को तकलीफ़ होती है और वो दर्जा पा लेता है। तो पता चला कि जो शहीद होता है उसके वहाँ अल्लाह की रहमत ही बड़ी जी होती है, क्योंकि उसके अंदर इश्क़ इलाही होता है। वो अल्लाह के लिए जान दे रहा होता है, वो जान ले भी रहा होता है। और एक मुकाम पर तो फरमाया जिस तरह चुटकी भरने की वजह से तकलीफ़ होती है ना, इतनी तकलीफ़ भी नहीं होती शहीद को तो उसकी रूह निकल जाती है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, कैसी रूह निकल रही है, कैसा मुकाम है, कैसा मुकाम है, कैसा मुकाम है, कैसा मर्तबा है। और इसकी मिसाल भी सुनिए, वो बड़ा ही खूबसूरत वाक़या अल्लाह ताला कुरान मजीद में ख़ुद इरशाद फरमाते हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का।
मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के मतलब जुलेखा को ताना दिया, जुलेखा तो किसकी आशिक हो चुकी है, एक बादशाह की बीवी होकर तू एक गुलाम की आशिक हो चुकी है। उसने कहा बैठो, दस्तरखान लगाया, सेब भी दिए, छुरी भी दी, खाना भी दिया, कहा खाओ, आ जाता है यूसुफ। देखना तुमने अभी यूसुफ देखा ही नहीं है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो वो मिस्र की औरतें जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की वजह से वो जुलेखा को ताना देती थी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर उन्होंने क्या किया, सेब काटने की बजाय अपने हाथ काट डाले। तो देखते देखते कहने लगी कि ये तो इंसान ही लगता है, ये तो फरिश्ता लगता है। तो उनको एहसास तक ना हुआ कि हमने उंगलियां काट डाली हैं। जब उन्होंने देखा सेब, अपनी तरफ से उन्होंने सेब ही काटा, लेकिन जब देखा नीचे से खून बह रहा है, ब्लड जारी हो चुका है, तो फिर पता चला हमने तो उंगलियां काट डाली हैं। तो यूसुफ को देखकर जिस तरह एहसास नहीं हुआ उंगलियां कटने का, इसी तरह मुस्तफ़ा को देखकर, मुस्तफ़ा के रब के जलवे देखकर भी एहसास नहीं होता, चाहे गर्दन कटी जाए चाहे बाजू कटा जाए। यही तो मंजर था मर्दाने करबला के अंदर। लोगों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हिस्से में हाय हाय डाल दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हिस्से में भी ये एक सारी ज़िंदगी एक दफ़ा भी हाय नहीं किया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो 40 दिन पानी बंद हुआ, मुहासरा किया, लेकिन एक दफ़ा भी हाय नहीं किया। उनकी तो तरबियत भी मुस्तफ़ा ने की थी, उनको तो सबक मुस्तफ़ा ने पढ़ाया, उनको तो सिखाया मुस्तफ़ा ने, उनके ऊपर ख़ास करम हुआ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यही एक मंजर था। ऐसे नहीं था कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में आकर, इमाम हुसैन के नाना जान की मोहब्बत में आकर, नाना जान के इमाम हुसैन के नाना जान के खुदा की मोहब्बत में आकर वो छोटे छोटे बच्चे भी अपने हलक में नेज़े खा रहे हैं। ओनो मोहम्मद भी शहीद हो रहे हैं, हज़रत अब्बास भी शहीद हो रहे हैं, अली अकबर भी शहीद हो रहे हैं, अली असगर भी शहीद हो रहे हैं, वो उमर भी शहीद हो रहे हैं, ये उस्मान भी शहीद हो रहे हैं। ये ऐसा मामला सिर्फ ये नहीं था, वो नज़र कुछ और आ रहा था। ये इश्क की दास्तां थी, ये मोहब्बत की दास्तां थी, ये वफा की दास्तां थी, ये सब्र की दास्तां थी। ये बहुत बड़ा मार्का था, कायनात में ऐसा मार्का नहीं था। ये नवासे रसूल यानी कि खातमन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। वो देखो मस्तूरात भी हैं, हमारी अजीम माएँ भी हैं, वो मौजूद हैं खामों के अंदर। एक हज़रत इमाम हुसैन लाशा उठा के लाते हैं, लेकिन फिर भी कुरान की तिलावत करते हैं। उन्होंने हमें सबक क्या दे दिया? हम जजीद के साथ टक्कर लगाकर ये साबित करना चाहते हैं हम अपने नबी की सुन्नत का परचम बुलंद करेंगे, हम हक बुलंद करेंगे, अल्लाह की तौहीद का परचम बुलंद करेंगे, इस्लाम को ज़िंदा करेंगे। यही वजह थी कि इश्क की एक ज़ायका है, ये शहादत का भी एक ज़ायका है। दुनिया के अंदर आपने बड़े बड़े ज़ायके देखे और किसी ने मीठे पानी का ज़ायका बड़ा अच्छा अजीम समझा, किसी ने सेब का ज़ायका अच्छा समझा, किसी ने कोल्ड ड्रिंक को पिया तो कहा ज़ायका बड़ा अच्छा है। लेकिन ये लज़्ज़तें हैं, दुनिया के अंदर की लज़्ज़तें हैं। हर बंदा क़यामत के दिन ये सारी लज़्ज़तें भूल जाएगा, लेकिन एक लज़्ज़त ऐसी है जो दुनिया की लज़्ज़त बंदा हासिल करने की कोशिश करेगा। वो लज़्ज़त क्या होगी? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हदीस पाक में आता है, मेरे आका और आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शुहदा जन्नत में दाखिल होंगे, जन्नत में दाखिल होने के बाद वहाँ की रहमतों और नेमतों को देखेंगे, अल्लाह की रहमतों को देखेंगे। देखने के बाद फिर क्या करेंगे? अल्लाह की बारगाह में फिर अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह इतना मज़ा, इतनी लज़्ज़त है, लेकिन वो लज़्ज़त एक दोबारा मिलनी चाहिए जो दुनिया में लज़्ज़त मिली थी। वो कौन सी लज़्ज़त है? देखो, जन्नत में जाकर दुनिया की कोई ख्वाहिश नहीं करेगा, जन्नत में जाकर दुनिया की कोई तलब नहीं करेगा, लेकिन एक शहीद है जो दुनिया की तलब करेगा। वो क्या करेगा? वो कहेगा, या अल्लाह मुझे दुनिया में भेज दे। दुनिया में क्यों, क्या करना जाना चाहते हो? जन्नत में सब कुछ मिल गया। या अल्लाह हम फिर दुनिया में जाकर शहीद होना चाहते हैं, हम शहीद हुए और शहादत के वक़्त जो जलवा
سماوات نظر آیا تھا، جو لذت شہادت کے وقت آئی تھی، جو چاشنی ہمیں شہادت کے وقت ملی تھی، جو ٹیسٹ ہمیں شہادت کے وقت ملا تھا، ہم وہ لینا چاہتے ہیں، وہ تو جنت میں بھی نہیں مل رہا۔ یہ ہے شہادت کی لذت۔ اور اس کائنات کے اندر اگر اتنی شہادت تھی، اسی لیے تو اللہ نے شہادت حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائی، اسی لیے تو شہادت اللہ نے حضرت عمر فاروق کو عطا فرمائی، اسی لیے تو وہ شہادت حضرت امام حسین کو عطا فرمائی، اسی لیے تو شہادت اللہ تعالیٰ نے حضرت میر حمزہ کو عطا فرمائی، اسی لیے تو شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ مجال تھی کہ ان کی تلوار کے سامنے کوئی آ جاتا، اتنی طاقت، جن کو طاقت اللہ نے دی، جن کو طاقت مصطفیٰ نے دی، جن کی زبان کو مصطفیٰ نے چوسا، جنہوں نے مصطفیٰ کی زبان کو چوسا، جن کو گٹی میرے مصطفیٰ نے دی، اللہ اکبر، زبان چوسا کر جن کے کانوں میں اذان میرے مصطفیٰ نے دی۔ کیا وجہ تھی؟ ان کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ آج لوگ ہائے ہائے کرتے ہیں، میں کہتا ہوں نئی بات یہ نہیں تھی، وہ شہادت کی جو لذت تھی، وہ جو ٹیسٹ تھا، جو قیامت کے بعد بھی جنت میں جا کے انسان دنیا میں خواہش کرے گا مجھے بھیج دے۔ حضرت امام حسین تو وہ لذت دیکھنا چاہتے تھے۔ یا رسول اللہ، آپ کو معراج ہوئی تو عرش معلیٰ پہ جا کر، مجھے معراج ہوگی تو کربلا معلیٰ میں جا کر۔ یا رسول اللہ، نانا جان، اللہ نے آپ کو بھی معراج کرائی اور اللہ نے شہید کو بھی معراج کرائی، مصطفیٰ کے غلاموں کو بھی معراج کرائی، حضور علیہ السلام کے غلاموں کو، شاگردوں کو بھی معراج کرائی۔ کیسا انداز ہے! حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ زہر آلود جو پیالہ پیا گیا تھا، اس کے اثرات باقی رہے، بخار ہوا، ان کی بھی شہادت ہو گئی۔ پتہ چلا یہ شہداء کا مقام اللہ نے اس قدر رکھا ہے، اس قدر ان کی فضیلت ہے، اس قدر ان کے مراتب ہے، اس قدر ان کو لذت ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کل جنت میں جا کر ہر شے ملنے کے بعد پھر ایک بات کی خواہش کریں گے، یا اللہ ہمیں پھر دنیا میں بھیج دے۔ کس لیے جانا چاہتے ہو؟ وہ شہادت کے وقت جو لذت ملی تھی، اللہ ہم وہ لذت پھر لینا چاہتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتنا کمال تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی کچھ دنوں کے بعد ان کی شہادت کا دن آ رہا ہے، اسی لیے تو کہا گیا نا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ یہ ہے تو، اور شہیدوں کی زندگی بھی بڑی کمال والی زندگی ہے، شہید اور مجاہدوں کی زندگی بھی بڑی کمال والی ہے۔ تو ہماری یہ خوش قسمتی ہے۔ تو میں تو یوں کہتا ہوں کہ امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے شہادت نوش فرمائی تو بڑی عظمت اور شان اور مرتبے کے ساتھ نوش فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سلام، انہوں نے شہادت نوش فرمائی تو بڑے کمال انداز میں نوش فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت نوش فرمائی تو بڑے کمال انداز میں نوش فرمائی۔ اور میدان کربلا کے اندر اللہ اکبر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہادت نوش فرمائی تو بڑے کمال انداز میں نوش فرمائی۔ ایسے نہیں کہا جاتا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا گیا ہے کہ حسین اگر شہید نہ ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، خدا کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بارے الہ نوحہ سناتا پھرتا، تا روزے جزا اشک بہاتا پھرتا، مدد نہ کرتے کربلا میں حسین اسلام کی تو اسلام آج ٹھکرے کھاتا پھرتا۔ یہ ایک نصاب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس طرح کہتے ہیں کہ ہر چیز ایک تھیوری ہوتی ہے، قرآن کی بھی ایک تھیوری ہے، قرآن کا بھی ایک پریکٹیکل عمل ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حضرت امام حسین کی زندگی ہے، حضرت عمر فاروق کی زندگی ہے، حضرت عثمان غنی کی زندگی ہے، حضرت علی کی زندگی ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ بات کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ شہیدوں کے مرتبے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دل میں شہداء کی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں لڑ کر شہید ہونے کی بھی تمنا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔